4 3 2 1. And as we have discussed in the previous video about the exercise 6.3 question number first and second as well as third, and the fourth question was in homework. So some of the students have asked me some doubts. So the generally student asked me the question number 6, 10 and 9 of fourth. So first we are solving this and then we will go on the question number 5th and question number 6 today. So sixth question is 9604. So we can start with 2. Reason because the unit place is 4. If unit place is 2, 4, 6, 8 and 0. So we can start with 2. 2 4s are 8. 1 remaining here 16. 2 8s are 16 and 0. 2 2s are 4. Again unit place is 2. So we can start with 2. 2 2s are 4. 2 4s are 8. 0 and 1. Now here is the problem is that the unit place is 1 and unit place is 1, so we can't go with the 2. And for 3 there is a rule 2 plus 4 6, 6 plus 1 7. सो 3 का जो रूल होता है उसमें हम नंबर्स को प्लस करते हैं और चेक करते हैं 3 के टेबल में आ रहा है या नहीं आ रहा. बट द सम इज 7, तो ये 3 से भी नहीं होगा. सो स्टूडेंट्स मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा कि क्वेश्चन अगर 2 और 3 से नहीं होता है सो हमको प्राइम नंबर से ट्राई करना चाहिए. इसके बाद जितने भी प्राइम नंबर से 5 7 11 13 एंड फॉर द 5 द यूनिट प्लेस शुड बी 5 और 0. सो 5 से क्वेश्चन नहीं हो रहा. सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद दिस 7. सो 7 3s are 21 and what is the remaining here 3 30. 7 4s are 28, then 2 21 and 7 3s are 21. So clearly it is divisible by 7. Now again unit place is 3, so हम 2 से नहीं जा सकते. 3 plus 4 7 plus 3 10. We can't go with the 3. So again we will start it with the prime numbers. So 5 not possible. Again 7 7 4s are 28 and 7 9s are 63. Again start with 7 7s are 49, 7 1s are 7. Now we are finding the square root of 9604. So इसको हमको रूट में लिखना होगा and then you will write the factors of this number and then ये 2 pair है, so 1 2 will be outside. 2 7 1 7 will be outside as it is. 2 7 1 7 will be outside. 2 7s are 14 and 14 7s are 98. So clear question number 6. Now the second doubt was the question number 10 and question number 9. So question number 9 is 529 and student remind one thing for the 529. 529 is the square of 23. So we can directly do with the 23 and then 23 ones are 23. As I told you that remind the squares till 30, so it will be beneficial for you solving this type of question. 30 तक अगर हमको स्क्वायर्स याद है तो वो क्लियरली एग्जाम में एट ए मोमेंट क्लिक कर जाएगा कि 529. सो वी कैन स्टार्ट विद 23. लास्ट वन इज 8100. सो फर्स्ट वी स्टार्ट विद 2 2 4s are 8 एंड देन यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं 4 5 0 कर देते हैं और यही एक मिस्टेक होती है जनरली. इस वजह से मे भी पॉसिबल यहाँ पे डाउट आया होगा दैट 2 4s are 8 एंड देन 2 5s are 10. दिस इज रॉन्ग. रीज़न इज दैट 2 4s are 8 फिर 1 में उसमें डिवाइड नहीं जा रहा है तो उसके लिए एक 0 और आती है एक्स्ट्रा. और ये प्रॉब्लम आपको आगे भी आ सकती है कुछ क्वेश्चंस में. तो हमको ये याद रखना है कि जब डिवाइड नहीं पॉसिबल हो पाता है तो उसके लिए एक 0 आती है. देन हम 1 के साथ में 0 को ऐड करके 10 करते हैं एंड देन 2 5s are 10 एंड 0. अगेन स्टार्ट विद 2 2 2s are 4 देन 0 2 2s are 4 देन व्हाट इज रिमेनिंग हियर 1 2 5s are 10. नाउ ये 2 से नहीं हो सकता. सो अगेन वी कैन गो विद दी 3, बट 3 के लिए प्रोसेस चेक करनी पड़ेगी. 2 + 2 4 4 + 5 9. यस 9 3 के टेबल में आता है तो वी कैन गो विद 3. 3 6s are 18 एंड व्हाट इज रिमेनिंग हियर 2, सो 22. 3 7s are 21, 1 remaining here. 3 5s are 15. नाउ लेट्स चेक फॉर 3 अगेन. 6 and 7 13, 13 and 5 18. 18 3 के टेबल में आता है. Then 3 2s are 6, 3 2s are 6, 3 5s are 15. Again we can check for 3. 2 + 2 4 + 5 9. So 3 7s are 21, 3 5s are 15. Again 3 2s are 6 and then 5 5 5 and 1. Now we can write like this 8100 in the square root 2 2 3 3 then 3 then 5 5. Now what is the pair are here? First one is 2, then 3, then again 3 and then 5. So 2 3s are 6, 6 3s are 18 and 18 5s are 90 and this one is your answer. And remind one thing student, the process is prime factorization. So number should be prime like this 2 3 5.
Generally, some of the students saying to me that, sir, should we start with 9 because 9 9s are 81? We can't. Reason is that because question is solution procedure which is prime factorization method, and in the prime factorization method the number should be prime. Now one note is here. If I ask you that 12 is perfect square, so how you can check? You can first factorize it and then we'll check here like this that यहाँ पे 2 तो 2 टाइम्स है बट रूट 3 एक ही टाइम में है तो रूट 3 विल बी इनसाइड हियर. सो रूट में कोई ना कोई नंबर हमारा बच गया, और रूट में कोई नंबर बच जाता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है. इसको मुझे अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता तो यहाँ पर मैं दो चीज़ें कर सकता हूँ. या तो मैं एक 3 और का मल्टीप्लाई कर दूँ. कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो या तो मैं एक 3 इसके अंदर एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर दूँ या पहले वाले 3 को हटा दूँ तो ओनली 2 बचेगा. तो जो हमारे क्वेश्चन नेक्स्ट हैं वो फिफ्थ एंड सिक्स्थ वो इन्हीं क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड है कि किसी नंबर को हम परफेक्ट स्क्वायर कैसे बदल सकते हैं. अब मैं आपके लिए एक बार क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ. Question number 5 and question number 6 are same, only the process are different. Each of the following number find the smallest whole number by which it should be multiplied to get a perfect square. मतलब ये जितने भी नंबर्स दे रखे हैं दे आर नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर. इनको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे कौन से नंबर से इनको मल्टीप्लाई करना चाहिए. एंड ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन्ड. और जो नया नंबर बन रहा है उसका स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है. एज इट इज क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइड so to get a perfect square. Also find the square root of the square number so obtained. मतलब वापस से क्वेश्चन जो दे रखे हैं सिक्स क्वेश्चन में वो भी सब क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. इसमें किस नंबर से हमको डिवाइड करना चाहिए. तो प्रोसेस दोनों की सेम रहेगी, बट एज वेल एज आई टोल्ड यू हियर अगर क्वेश्चन होता है मल्टीप्लाई का तो हमें एक 3 और यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और क्वेश्चन आता है डिवाइड का तो हमको इसी 3 से डिवाइड करना होगा. तो क्वेश्चन में सबसे पहले हमको क्या करना होता है, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 सबसे पहले हमको करना है फैक्टराइज. फैक्टराइज करने के बाद हमको रूट में चेक करना है कि रूट में कितने नंबर बच गए बिना पेयर्स वाले, विदाउट पेयरिंग नंबर. क्लियर? एंड देन वी विल सॉल्व आवर क्वेश्चन. सो लेट्स हैव सम वन एग्जांपल फॉर द क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 एंड देन यू डिसाइड कि आपसे हो पा रहे हैं या नहीं. सो यू कैन ट्राई एंड रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन विल बी होमवर्क. As you can see, I have done one first question of the fifth question, exercise 6.3, and question was that कि हमको कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहिए. क्वेश्चन इज 252. सबसे पहले उसको फैक्टर्स करना है. फैक्टर करने का उसको मैंने अरेंज किया यहाँ पे. नाउ चेक 2 पेयर्स, सो 1 2 इज हियर, 2 3s आर ऑल्सो हियर, और रूट में सिंगल कौन बच गया, 7. सो ये हो जाएगा 2 3 6 रूट 7. अब इसको परफेक्ट स्क्वायर में बदलने के लिए, परफेक्ट स्क्वायर मतलब इसके अंदर रूट ना आता हो, सो आई जस्ट वांट टू कन्वर्ट इट इनटू परफेक्ट स्क्वायर. सो यहाँ पर इस 7 के साथ में एक और 7 होना चाहिए था. मीन्स अगर यहाँ पर एक 7 और होता तो वो 2 7 का पेयर भी बन के बाहर आ जाता और हमारा आंसर फाइंड आउट हो जाता. बट कैसा था, नहीं हुआ. तो क्या हमारे पास यहाँ पर एक 7 और है, नहीं है. सो हम क्वेश्चन में क्या करने वाले हैं, सो हमको थोड़ी लैंग्वेज हर क्वेश्चन में लिखनी है. तो लिखेंगे 7 is the smallest number by which we multiply to get a perfect square number. ठीक है. So question was 252. So now we are multiplying 252 into 7. So 1764. 1764 is the new number. As you can see here, there are two questions. First one, for find the smallest whole number by which it should be multiplied to get a perfect square number. मतलब कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहिए. So 7 is the smallest number by which we multiply to get a perfect square. मतलब फर्स्ट आंसर हो गया आपका. बट इसमें एक क्वेश्चन और भी है. The next question is also find the square root of the square numbers obtained. मतलब जो नया नंबर मिला उसका स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है. तो मेरे सामने नया नंबर कौन सा मिला है मुझे, 1764. अब इसका मुझे स्क्वायर रूट ही फाइंड करना है. अब इसको करने की दो प्रोसेस है. क्या प्रोसेस है, यहाँ तो मैं इसको फैक्टराइज कर लूँ सबसे बेस्ट. कैसे, चेक करते हैं. मैं इसको ऑन द न्यू पेज, ओके, आई कैन स्टार्ट विथ 2 2 8 16, 2 8 16 अगेन, 2 2 4, देन 2 4 4 1, देन 3 1 4 7, then 3
4977771, ठीक है. एंड देन 1764 we will write the factors, and then 1 2 1 3 and 1 7. एज यू कैन सी रूट में कुछ भी नहीं बचा जब मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया. 2 3 6 6 7 42 एंड 42 इज द आंसर ऑफ सेकेंड क्वेश्चन. तो यहाँ पे दो क्वेश्चन थे. पहला था कि हमको इसमें किससे मल्टीप्लाई करना है, सो हमको किससे मल्टीप्लाई करना था, तो रूट में कौन बचा था 7, तो 7 से हमको मल्टीप्लाई करना चाहिए. मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया, मुझे एक नया नंबर मिला. उसी नंबर्स को मैंने सोल्व करके इसका स्क्वायर रूट फाइंड करा विच इज़ द 42. नाउ क्वेश्चन इज इसको मैं डायरेक्ट कैसे करूँ एग्जाम में अगर मुझे करना हो तो आपने जहाँ क्वेश्चन को यहाँ पे छोड़ दिया था 6√7 को, इसी के आगे हम ऐसा लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1764 इज इक्वल्स टू, आपको कुछ नहीं करना है, जो फैक्टर्स यहाँ थे उनको कॉपी करना है. 2 × 2 3 × 3 7, और एक 7 का मल्टीप्लाई हमने किया तो 7 का पे एक्सटेंड कर दो. देन 2 2 2 3 एंड 2 7, 2 3 6 6 7 42 एंड इज द आंसर. सो या तो हम नए नंबर का ही फैक्टराइजेशन करें, या जो हमने लास्ट में जो उसमें फैक्टर्स किए थे 252 के लिए उसको यहाँ पे कॉपी करके एक 7 एक्सटेंड करना है जिस 7 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं. क्लियर. अब क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स के माइंड में कि सर कभी हम क्वेश्चन में फैक्टराइज कर रहे हों और आप इस कंडीशन पे आ जाओ कि सर अब हम क्या करें. तो यहाँ पे देखो आपके 2 3 तो हैं. अब हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो मुझे यहाँ पे एक 2 की ज़रूरत हो रही है, एक 5 की और नीड है, और एज इट इज़ एक 7 की नीड हो रहा है. मीन्स 2 5 10, 10 7 70. मीन्स हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे 70 का. वैसे इस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे नहीं आपके, बट इन एनी केस कोई ऐसी डिजिट आ जाती है जिसके अंदर फैक्टर्स करने पर ये नंबर आ रहे हैं तो हमको पता नहीं चल रहा है सर किसका मल्टीप्लाई करें, 2 का करें, 5 का करें, 7 का. सो यू जस्ट नीड टू चेक कि हमें कितने 2 5 और 7 की नीड है. 1 2 1 5 और 1 7 अगर यहाँ होता तो उनके पेयर्स बन जाते. मीन्स 2 5 10 और 10 7 70 का मल्टीप्लाई करेंगे, सो यू विल गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. सो होप ये आपको क्लियर हुआ होगा. सेम क्वेश्चन फॉर द डिवीजन ऑल्सो. लाइक इसी क्वेश्चन को अगर मैं डिवाइड के लिए कर रहा होता तो प्रोसेस जो आपकी थी वो यही रहती, बट यहाँ पर जो हमने लिखा ना 7, तो यहाँ बता 7 इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच वी डिवाइड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. फिर हम 7 से डिवाइड करते, 7 से डिवाइड करने पर एक नया नंबर मिलता, उस नए नंबर के यहाँ तो फैक्टर करते, या कॉपी करने के लिए हम चाहते तो इस 7 को यहाँ से रिमूव कर देते, तो 6 विल बी आंसर. चलो आपको शो करके बताता हूँ सेम क्वेश्चन के लिए. सो एज यू कैन सी हियर दैट 252 को मैंने फैक्टराइज करा, फैक्टर्स में ही आए. देन 1 2 1 3 और रूट में 7. सो विल राइट हियर 7 अगर यहाँ नहीं होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता. मतलब 7 का क्या करना चाहिए डिवाइड, मतलब कोई नंबर बढ़ाना हो, एक्सटेंड करना हो तो मल्टीप्लाई, हटाना हो तो डिवाइड. तो 7 इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच वी डिवाइड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. क्लियर. नाउ हम इसको डिवाइड भी करेंगे. सो 252 डिवाइडेड बाय 7, सो विल गेट 7 3 21, 4 7 6 42. सो 36 योर न्यू नंबर. एंड नाउ 36 के यहाँ तो आप फैक्टर कर लो या पहले के फैक्टर्स कॉपी कर लो. 2 2 3 3, बस इसमें 7 को कॉपी नहीं करना है बिकॉज 7 हम हटा चुके डिवाइड करके. सो 2 2 3 3 1 2 एंड 1 3, 2 3 6. तो आपके दो आंसर हो गए. फर्स्ट वन इज द 7 एंड सेकेंड आंसर इज 6. सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे. तो आई थिंक मुझे एक एग्जांपल और देने की नीड नहीं है कि हम इसमें एक एग्जांपल और सेट करके देखें. यू जस्ट ट्राई एट योर होम क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 एंड देन जस्ट सेंड मी योर डाउट जस्ट लाइक you have sent me for the question number 4, and we will discuss that doubt in the next video. Thank you and have a nice day.